Okay, so we'll begin the class now. Today we'll be discussing a few essays. This is essay number 251 actually in the book that you have, but I have been editing this book for the next edition. So there was one essay, one or two essays which were quite similar, which I have removed. So this number is 250, but you have this essay in your book at 251, those who have the latest edition of the book. Okay. So this is all over the world. People watch foreign films more than locally produced films. Why? Should the government provide financial support to local film industries? Now, this is a direct question essay. Direct question essay, first essay that we are discussing today, this happens to be a direct question essay. कुछ डिफरेंट नहीं है. जैसे कोई भी essay को आपने आंसर करना है, इंट्रोडक्शन में आपने ये दोनों चीजें टच कर देनी है. यू हैव टू टेल द एग्जामिनर कि आपने एक तो वाई का आंसर दे रहे हो और एक इस क्वेश्चन का आंसर आपने पूरे एसे में देना है. यू कैन टेल दीज टू थिंग्स टू द एग्जामिनर इन द इंट्रोडक्शन कि मुझे ये एसे में ये हैंडल करना है. देन योर इंट्रोडक्शन ऑफ ए डायरेक्ट क्वेश्चन एसे इज बैंड 7 और 7+. समझ आ गई ये बात? डायरेक्ट क्वेश्चन एसे की हैंडलिंग. ओके, तो सो यू हैव टू टेल द एग्जामिनर कि आपको ये दोनों चीजें अपने एसे में बतानी है. आइल्स का एसे क्या है? इंट्रोडक्शन में एग्जामिनर को बताओ मैंने आपको जी ये बात बतानी है, और फिर बॉडी को उसको बता दो, और कंक्लूजन में बताओ कि ये बात आपको बता चुका हूं. बस दैट इज इट. दैट इज द आइल्स एसे. ओके, this simplicity will fetch you better bands than making flowery introductions and flowery conclusions. Flowery introductions don't have any place in the IELTS. To the point, brisk introduction and conclusion will fetch you better bands. Okay, now all over the world जो लोग हैं वो फॉरेन फिल्म्स ज्यादा देखते हैं मोर देन लोकली प्रोड्यूस्ड फिल्म्स. ऐसा क्यों होता है, और क्या गवर्नमेंट को लोकल फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए? दैट इज द एसे. ओके, अब हमने अपने कंटेक्स्ट में अपने हिसाब से लिखना है, पर ये समझो कि ये पूरा एसे है, ये यूएस में बच्चे बैठे हैं वो भी लिख रहे हैं, और जापान वाले भी लिख रहे हैं, कोरिया वाले भी लिख रहे हैं. उन सबके लिए फॉरेन फिल्म्स, जो कोरिया और यूएस है उनके लिए फॉरेन फिल्म्स का मतलब है इंडियन फिल्म्स, पाकिस्तानी फिल्म्स, जापानीज. हमारे लिए फॉरेन फिल्म्स का मतलब है इंडिया के बाहर की कंट्रीज की सारी फिल्म्स. तो हम उनको देखना ज्यादा पसंद करते हैं मोर देन लोकली प्रोड्यूस्ड फिल्म्स. क्यों? और क्या गवर्नमेंट को लोकल फिल्म इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए? ये ऐसे मेरी बुक में 450 वर्ड्स का है. सो विद योर हेल्प आई विल बी कटिंग इट डाउन आल्सो. Okay. Please mute yourself until and unless you have to ask something. Okay. Okay. Foreign films such as Hollywood blockbusters are released all over the world and are enjoyed more than the locally produced films. This essay shall look into the reasons of this developed phenomenon and also discuss whether the government should provide financial aid to support the local film industry. ओके, अब ये इंट्रोडक्शन को भी मैं थोड़ा सा इसको बेटर करना चाहती हूँ. मैंने हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स डाल दिया. वो हमारे लिए तो फॉरेन है, पर वहां बैठे लोगों के लिए वो फॉरेन नहीं है, तो मैं जनरलाइज में ऐसा कोई नाम नहीं डालना चाहूंगी. सो फॉरेन फिल्म्स आर एंजॉयड more than the locally produced films. There are many reasons why this is happening. Enter करते हैं ना. And I firmly believe that the domestic film industries should be
इंट्रोडक्शन थोड़ी कट शॉर्ट कर दी है. हैव आई आंसर्ड कि मैं ये एग्जामिनर को पता चल गया कि मैं ये दोनों चीजें डालने वाली हूँ ऐसे में? बताओ, आपको लग रहा है कि बता दिया मैंने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is a good enough introduction. Okay, and it is easier to make once you learn how to make the introductions. ये आपको easy लगी, कोई difficult word भी नहीं है इसमें. Okay, अब reasons आने हैं इस पैरे में. The popularity of Hollywood films and foreign films in general. The popularity, ये भी मैंने ऐसे कर दिया ना, popularity of foreign films in general can be attributed to the fact that they use the most modern technology. For instance, the amazing visual effects and acoustics of the Hollywood movie Avatar won global audiences. What is more, big companies that have money and the means to generate huge publicity for them produce these films. Today, we all know that marketing is what decides the fate of a product, be it a film, a book, or a gadget. So it is not surprising that these films tend to do well overseas. In contrast, small production houses usually produce the locally produced. Okay. In contrast, small production houses usually produce the locally produced films, and on top of that, they often have familiar storylines that may not interest some people. That probably explains why most people watch foreign films more than locally produced ones. अब देखो, the main reason, अब इसको मैं पहले को ऐसे शुरू करूंगी, इसमें बहुत कुछ फालतू दिया है. ये ऐसे ना 450 वर्ड्स का है, मुझे 100 वर्ड्स कट शॉर्ट करने हैं. The main reason for the popularity of foreign films is that they use the most modern technology. So ये एक रीजन हो गया. मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उनके अमेजिंग विजुअल इफेक्ट्स हैं, अकोस्टिक्स हैं, जो ग्लोबल ऑडियंस, जो लोगों को अच्छा लगते हैं, लोग देखना चाहते हैं उनको. अब एवेटार मूवी जिन्होंने 3D में देखी है, ऐसी कोई मूवी इतनी अच्छी इफेक्ट्स में नहीं देखने को मिली आज तक. डू यू ऑल, जिन्होंने देखी है 3D में, हैव यू वॉच्ड इट इन 3D? नहीं, तो उसको जरूर देखना कभी मौका मिले तो. ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी. व्हाट इज मोर, सेकेंडली, ओके, ये सेकेंड रीजन है. व्हाट इज मोर करके भी सेकेंड रीजन डाल सकते हो. मेन रीजन, देन व्हाट इज मोर. ओके, व्हाट इज मोर, the money and the means to publicize or advertise these films. To advertise these films a lot of money and the means is used. A lot of money is put into. आपने अपने टीवी पे कभी फॉरेन कोई मूवी रिलीज हो रही है और वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है, उसकी एडवर्टाइजमेंट्स देखी हैं टीवी पे? आती हैं एडवर्टाइजमेंट्स. अगर कोई मूवी बड़ा बिग ब्लॉक कोई रिलीज होने वाली, तो इंडिया में उसकी एड्स आती हैं टीवी स्क्रीन पे. यस मैम. Yes, ma'am. हाँ, तो हमारी मूवीज की उतनी एड्स आती हैं? नो मैम, आती है वैसे पर इतनी हाँ, पर वो जो उनकी एड्स देख के क्या दिल करता है कि वो मूवी देखो, बहुत ही अच्छी है, देखने का मन Yes, करता है ma'am. एकदम. तो दैट इज Yes. द सेकंड रीजन. A lot of money is put into advertise these films. ठीक है, ये दूसरा रीजन है. So it is not surprising these films tend to do well overseas. ये इसका हो गया. ये अब जच रहा है. उसके बाद ये सेंटेंस और इजी हो गया. देखो, अब पूरा पढ़ो. Yes, ma'am. The main reason for the popularity of foreign films is that they use the most modern technology. For instance, the amazing visual effects and acoustics of the Hollywood movie Avatar won global audiences. What is more, a lot of money is put into advertise these films, so it is not surprising that these films tend to do well overseas. In contrast, small production houses, locally produced films. In contrast, locally produced films
locally produced films are not advertised, are not, अब हमने advertise word ऊपर कर दिया, publicize that much, by contrast, and on top of that they often have familiar storylines, और उसके ऊपर से उनकी storyline भी familiar होती है, ठीक है, that may not interest some people. ये अब sentence ठीक है. In contrast, locally produced films are not publicized that much, and they often have familiar storylines, that may not interest some people. ठीक है. That probably explains why most people watch ये वाली line जो है ना, ये फिर ये, so it is not surprising, ऊपर हमने लिख चुके हैं, तो ये दोबारा रेपिटेटिव सी लाइन है, इसको भी हटा दो. अब देखो ये वाला पैरा, this paragraph is 82 words, good enough for a paragraph. Is it okay? Yes, ma'am. Another significant reason for watching foreign films is that people are curious to know about foreign lifestyles and culture. ये तो बिल्कुल क्लियर है पॉइंट. पहले पैरे में मैंने 2 पॉइंट्स डाले हैं. सबसे पहला पॉइंट है कि उनके टेक्नोलॉजी बहुत हाई क्लास यूज की हुई है, और दूसरा है कि उनकी पब्लिसिटी पे बहुत पैसा लगाया जाता है. ठीक है. तीसरा रीजन मैंने इस पैरे में शुरू करा है कि लोग क्यूरियस है टू नो अबाउट फॉरेन लाइफस्टाइल्स एंड कल्चर्स, और फिर मैंने ये वाली जो लाइन डाली मैं इसको निकालूंगी अब, बिकॉज ये बहुत बड़ा पैरा है. People are exposed to different cultures, and watching foreign movies satiates their curiosity of knowing about them. ये तो बिल्कुल repetitive है. यहाँ पे watching foreign movies यहाँ से कर देती हूँ. Watching foreign movies satiates their curiosity of knowing about them. See, people are curious to know about foreign lifestyles and culture. ठीक है, लोग जानना चाहते हैं ना कि बाहर लोग कैसे रहते हैं, जापान में लोग कैसे रहते हैं, कोरिया में लोग कैसे रहते हैं, क्योंकि उनको ये दुनिया जो है वो बहुत ज्यादा श्रिंक हो गई है, ग्लोबल विलेज बन गई है. लोगों को सैटेलाइट टीवी की वजह से लोगों को पता है कि इतनी कंट्रीज हैं, ऐसे लोग रहते हैं, तो और ज्यादा पता करने के लिए उनके बारे में they watch foreign movies. So watching foreign movies satiates their curiosity of knowing about them. Recently I watched a Japanese movie, Okorobito. जब मैंने पहली बार ऐसे लिखा था ना, मैंने ये मूवी देखी थी नई, which means departures, from which I learned how the Japanese do the last rituals when a person dies. Okay, so I'll just tell you in 2 minutes. This movie, in this a person, उसका क्या काम है? उसका ये काम है, जब किसी की डेथ हो जाती है ना, तो उस बॉडी की लास्ट राइट्स करता है. तो ये दिखाया कि इतने प्यार से उस बॉडी को नहलाता है. हमारे भी लास्ट राइट्स ऐसे करते हैं ना, जब किसी की डेथ होती है घर में, तो ये बंदा बहुत प्यार से करता है उनके लिए, और बहुत अच्छे से ऐसे फूल रखेगा, उनके कपड़े चेंज करेगा, उनको मतलब बहुत ही प्यार से हैंडल करता है डेड बॉडी को. तो ये जो इसकी वाइफ होती है ना, उसको इसका ये काम पसंद नहीं है. कहती तू रोज डेड बॉडीज के साथ काम करता है, मुझे तेरा ये काम पसंद नहीं है, तो अपना काम बदल. तो ये काम बदलता नहीं है, तो उनका ना ऑन द ब्रिंक ऑफ ये डिवोर्स आ जाती है उनकी जो मतलब सिचुएशन. और इस दौरान इसका अपने फादर की डेथ हो जाती है इस बंदे के. तो ये हस्बैंड वाइफ दोनों, चाहे आपस में इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है, वहां जाते हैं जहां इसका फादर रहता है, और वहां कोई और कर रहा होता है उसके लास्ट राइट्स. और वो जो उसके लास्ट राइट्स कर रहे होते हैं ना, वो बहुत गंदे तरीके से कर रहे होते हैं, बहुत गंदे. और ये इसकी वाइफ तब देखती है, फिर उनको मना करती है, कहती है यू विल नॉट डू इट, माय हस्बैंड विल डू इट. तो फिर वो रियलाइज करती है कि इसका काम कितना इंपॉर्टेंट है, और ये कितना अच्छा बंदा है, ये कितने अच्छे से करता है किसी के जाने पे. देन दे कम क्लोजर टुगेदर अगेन, और फिर मतलब दैट वाज द एंड. सो यू अंडरस्टैंड दिस. ये मुझे बड़ी टच करी थी उनके लास्ट राइट्स की ये दिस मूवी. So this movie fascinated me a lot, and I came to know about Japanese traditions. Some people also watch Hollywood movies to learn English, which has become the global language, and watching English movies is a good way to learn English. तो ये reasons आपको चारों समझ आ गए. बहुत बहुत easy कर दिए दोनों passages, दोनों paragraphs.
Are these paragraphs clear now? Yes, ma'am. I firmly believe, अब हमने दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना है जो पूछा गया था. I firmly believe that the government should invest in the local film industry. To begin with, films are the carriers of a country's culture. Supporting the local film industry will enables the spread. Okay, will support करेंगे तो will enable the spread or will enable to spread its culture, and this seems an essential approach to help a country. Okay, and this can make a country to be more powerful in the world, to be recognized in the world. Okay. Secondly, the boom of this industry would to a large extent produce an increasing number of job in positions, and consequently, secondly, the unemployment rate in the country might substantially decrease, which will contribute to its economy. Simple कर दिया मैंने बिल्कुल. Okay? अब ये ऐसे लिख सकते हो जैसे अब लिखा हुआ है. Recently, our Bollywood movies such as Dabangg and Jab Tak Hai Jaan have done business worth crores, and this has definitely boosted our economy. Summing up, people watch foreign movies because of their better technology, and to satisfy their curiosity of foreign culture, the government should definitely promote local film industry for spreading our culture and for boosting the economy. तो मैंने सारे दोनों points डाल दिए इसमें. Now this essay is, I think, थोड़ा मैंने cut short तो कर दिया, काफी बहुत लंबा था. Now it is 332 words. I'm very happy about that. Okay. I'll be sharing this file with you. आपने पढ़नी है ये, ठीक है? Okay, now we go over to, I'll put it in red that it has been now changed. Okay, now we come over to this essay. Some people believe that radio is the best way to get news, while others believe that TV is better for this purpose. Discuss both views and give your opinion. Now this is a discuss essay. और डिस्कस ऐसे में मैं आपको हमेशा बोलती हूँ आप 4 पैरे का ऐसे टोटल बना दो, 5 का बना दो, दोनों करेक्ट है. सबसे पहला आज हमने ऐसे डिस्कस किया, दैट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे, एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द हैंडलिंग ऑफ द डिस्कस ऐसे. सो ऑल दोज हु आर फर्स्ट डेयर्स टुडे, ओके, प्लीज ये ध्यान से देखना. आपकी कोई ऐसी क्लास नहीं है, मेरी कोई ऐसी क्लास नहीं होती जिनमें जो फर्स्ट डेयर्स है वो कह पाए कि हमें कुछ नहीं समझ आया, क्योंकि हमारा आज पहला दिन था. ओके, बिकॉज ये डायलॉग मैं सुन के, इंग्लिश हिंदी में क्या वर्ड यूज करते हैं, पक गई हूं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? हमें कुछ नहीं समझ आया, आज हमारा फर्स्ट डे था. Frustrate, ma'am. पक जाना इस, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट मींस, बट यूज करते हैं ये पक गई हूं. ओके, जैसे मुझे किसी एग्जामिनर ने बताया था कि हम एरा वर्ड पढ़ के एसेस में पक गए हैं. अब हमें अच्छा नहीं लगता जब डालते हैं बच्चे एरा, मॉडर्न एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, तो कहते हैं एरा वर्ड पढ़ के ना माथे पे हाथ मारते हैं जोर से, अरे अरे फिर आ गया. ठीक है, तो ये पक जाना इज दैट. ओके, एनीवेज, तो समझ आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रही हूँ, फर्स्ट ईयर्स जो भी हैं? आई डोंट नो. ओके, दिस इज डिस्कस एसे. इन अ डिस्कस एसे you have to write opinions of other people, and you just have to state your opinion in the intro and conclusion, which will happen to be going with one side of people. Okay, अगर आपका opinion दोनों side से different है या midway है, then what you can do is you can make a third paragraph, body paragraph, so that will be a 5 para essay. Sometimes क्या होता है कि जैसे 2 views है, तो एक side के लोगों के views के आपके पास points ज्यादा है, तो आप फिर भी एक थर्ड पैराग्राफ अपना बना सकते हो और वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स डाल के किसी एक साइड को सपोर्ट कर सकते हो. ये सब क्लियर हो गया आपको, इतना जितना मैंने बताया अभी? Yes, ma'am. एंड आपको मैं एक और बात बता रही हूँ, 25 सितंबर 2021 मॉर्निंग स्लॉट इंडिया, दिस essay was seen in the exam. ओके, एंड आपको एक और बात बता दूं, लास्ट ईयर जो ग्राफ जुलाई में आया इंडिया में, वो ही ग्राफ अगस्त में आया,
और वही ग्राफ तीसरी बार अक्टूबर में आया. ओके, सो ये ऐसे रिपीट हो सकता है बिकॉज आजकल रेपिटिशन बहुत जल्दी जल्दी हो रही है ऐसे इसकी. आज से 10 साल पहले एक बार ऐसे आ जाता था तो मैं सोचती थी अब 2 साल तो ये नहीं दिखने वाला इंडिया में, और ऐसे होता भी था. 2 साल के लिए वो पीछे पड़ जाता था ऐसे. अब क्या है कि दूसरे महीने रिपीट हुआ होता है. सो प्लीज 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 डू ऑल दीज एसेस जो अभी आए हैं उनको भी स्पेशली कर लेना बिकॉज आजकल रेपिटिशन बहुत जल्दी हो रही है. ठीक है, नाउ we'll read this essay and we'll see how to handle a discuss essay. Okay. और सिमिलर ऐसे जीटी बुक में भी है. सो दिस इज एज इंपॉर्टेंट फॉर द जीटी स्टूडेंट्स. सम पीपल बिलीव दैट रेडियो बेस्ट वे है, अगर कहते हैं टीवी बेटर है. डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. People receive news from different sources. This essay shall compare two popular media from which people receive news, the radio and the television. I believe that both have their own importance as far as getting news is concerned, but TV certainly has an edge over the radio. तो लोग मैंने इसकी इंट्रोडक्शन बिल्कुल इट इज बिलीव्ड बाय सम दैट रेडियो इज बेटर व्हाइल अदर्स बिलीव दैट टीवी इज बेटर वैसे लिख सकते हो. इन दिस एसे आई विल डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ. आई बिलीव both are important, but TV has an edge over the radio. TV has an edge over the radio. What is the meaning of having an edge over? More advantages. हाँ, but having an edge over का मतलब है थोड़ा सा एडवांटेज ज्यादा है. Having an edge over. See, ये है हमारी एक बुक और ये है हमारे हाथ में. देखो, ये है टीवी, ये है रेडियो और ये है टीवी. अब जो टीवी है इसका एज ओवर दिख रहा है आपको रेडियो से? यस मैम. हाँ, तो एज ओवर थोड़ा सा ज्यादा टच करना उसके बस. हाँ, थोड़ा सा ज्यादा उससे एज ओवर द रेडियो. रेडियो अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट आई वांट टू से, बट टीवी हैज एन एज ओवर द रेडियो. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि हमने रेडियो के एक पहला जो पैरा बनाना है वो बनाना है. द मेन रीजन व्हाई सम पीपल से दैट रेडियो इज बेटर देन ऑल अदर सोर्सेज ऑफ न्यूज मीडिया, क्योंकि वो कहते हैं रेडियो इज द बेस्ट वे टू गेट न्यूज. तो रेडियो को तो उन्होंने सिर्फ टीवी से कंपेयर नहीं करा, रेडियो को तो उन्होंने हर चीज से कंपेयर कर दिया. क्योंकि द बेस्ट नहीं होता अगर सिर्फ रेडियो और टीवी को कंपेयर करते. रेडियो और टीवी को कंपेयर करते तो रेडियो इज बेटर देन टीवी, नहीं, बाकी कहते टीवी इज बेटर देन रेडियो. इन्होंने टीवी इज बेटर रेडियो से बेटर कह दिया. तो रेडियो को कुछ लोग कहते हैं रेडियो बेस्ट है, बाकी कहते हैं टीवी रेडियो से भी बेटर है. ओके, डिस्कस बोथ व्यूज. सो इसमें है there are many reasons. The main reason why some people say that radio is better than all other sources of news media is that the radio can be accessed while doing any other work. तो सबसे पहली important बात क्या है कि कुछ भी आप और कर रहे हो, रेडियो सुन सकते हो साथ साथ. ठीक है, a person can put radio in his pocket and listen to the news or any other programs of his interest while jogging at a park, driving, commuting to and from work, having meals, or even lying on the bed with lights off and resting. ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए. रेडियो कहाँ कहाँ किया जा सकता है, सुना जा सकता है. ओके, furthermore, अगला एडवांटेज, द न्यूज स्क्रिप्ट इज ऑल्सो डिफरेंट ऑन द रेडियो एज कंपेयर टू टीवी. जो न्यूज की स्क्रिप्ट है रेडियो की और टीवी की डिफरेंट होती है, बिकॉज अ रेडियो न्यूज रीडर हैज टू डिस्क्राइब द होल इवेंट थ्रू वर्ड्स without giving long pauses as in case of the TV. टीवी में क्या होता है, लॉन्ग पॉजेस दे सकते हैं बिकॉज बीच बीच में लोग वीडियो भी देख रहे हैं. समझ गए? और रेडियो में क्या होता है, कोई लॉन्ग पॉज नहीं देने, बोल बोल के सारा एक्सप्लेन करना है. ओके, रेडियो कमेंट्री टीवी कमेंट्री से फर्क है ना? यस मैम. ऐसे ही रेडियो न्यूज टीवी न्यूज से फर्क है. For example, if a cricket sports match is going on, a radio commentator will have to speak a lot more than what a TV commentator will have to speak. ये तो समझ आ गया आपको दोनों पॉइंट्स? यस मैम. अब अगला पैरा बनाएंगे. On the other hand, those who opine that TV is a more effective way to get the news give their reasons as follows. अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लो. यहाँ पे मैंने लिखा है why some people say, why those who opine that. मतलब मेरे व्यूज नहीं है, कुछ लोगों के व्यूज हैं. ये कुछ लोगों के व्यूज. अगर मैं सीधा लिख देती ऑन द अदर हैंड टीवी इज ए मोर इफेक्टिव वे बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, तो मेरा व्यू होता वो.
तो डिस्कस Yes, ma'am. का फॉर्मेट मैंने उस यहाँ पे फिर नहीं अप्लाई करा, तो मेरा ऐसे हाई स्कोरिंग नहीं जाएगा। डिस्कस ऐसे कि ये लाइंस दो, आप अच्छे से समझ लो क्यों कुछ लोग ऐसा कहते हैं और जो लोग वैसा कहते हैं वो इसलिए कहते हैं। समझ आ गई? ये कुछ लोग, ये दो अलग अलग तरह से मैंने सेंटेंस दिए हैं ताकि आपके दोनों पैरे बिल्कुल सिमिलर सेंटेंस से ना शुरू हो। ऑन द अदर हैंड देयर आर मेनी रीजंस व्हाई अदर पीपल से दैट टीवी इज बेटर। ठीक है, वो तो सिमिलर हो जाएगा ना इस लाइन जैसा। इसको मैंने चेंज कर दिया। Those who opine that TV is more effective way to get the news give their reasons as follows. Firstly, it combines both sight and sound, which are the two main human senses for communication and is therefore more influencing. For instance, if a person hears a news item about an accident, he may forget it soon. But if he has seen horrifying images of the same accident on TV news, he may not forget that impact on his mind for a long time to come. Secondly, with the advent of the latest technology, अब latest technology आ गई है, the TV has become as portable as the radio. TV भी उतना ही portable हो गया जैसे radio है। अब पोर्टेबिलिटी की बात मैंने ऊपर नहीं करी है थोड़ी सी, कि कहीं कहीं भी सुन सकते हो, जॉगिंग करने के टाइम सुन सकते हो, पॉकेट में डाल के सुन सकते हो। टीवी भी पोर्टेबल हो चुका है उतना ही। पोर्टेबिलिटी की जहां तक अकेली हम पोर्टेबिलिटी की बात करें तो टीवी भी उतना ही पोर्टेबल हो गया है। अब आपके टीवी में एप्स है, हॉटस्टार, Z5। अब आप टीवी ऑन द गो देख सकते हो, टीवी ऑन द गो। मैम मोबाइल फोन पर आएगा ना वो तो। हाँ तो फोन पे टीवी आ गया ना, टीवी आ गया, सारे चैनल्स वगैरह उसी में सारे आ गए ना। टीवी ऑन द गो हो गया। टीवी देख सकते हो। ऑन द गो मींस व्हाइल गोइंग समवेयर, रास्ते में। टीवी ऑन द गो। यस मैम। Because of this reason mainly the TV has gained an edge over the radio. और इस रीजन की वजह से टीवी का जो सिरा ऊंचा हो गया रेडियो से। समझ गए? सिरा ऊंचा, gained an edge। ठीक है? यस आ गया? Ma'am, can we add one point that radio doesn't cause any harm to our eyes? हाँ लिख लो। जब वो देख ही नहीं रहे हो कुछ तो हार्म क्या करेगा बेचारा रेडियो। ठीक है? ओके। बट मैम ये एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है ना, इसमें तो सिर्फ हमें बताना है कि वो क्यों सही मानते हैं और वो दूसरे क्यों सही मानते हैं। हाँ तो ये टीवी का एडवांटेज, रेडियो का एडवांटेज हो गया ना कि वो टीवी जैसे आंखें नहीं खराब करता। ओके मैम। वो इस वे में कह रहा है। वैसे इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है क्योंकि ये बहुत ऐसे ही है, मतलब इट इज जस्ट टू ऐड वर्ड्स, कुछ ऐसा है नहीं क्योंकि उसमें विजुअल एलिमेंट है ही नहीं। अगर हाँ किसी चीज में विजुअल एलिमेंट होता और उसकी रेज जो है वो ब्लू रेज होती है, कोई ऐसी रेज होती, इंफ्रारेड नहीं होती, जो नहीं हार्म करती, तो हम बोलते कि इसमें हार्म कम है उसमें ज्यादा है, कुछ ऐसे, फिर तो वो पॉइंट अच्छा होता है। बट इसमें ठीक है, डालने को डाल सकते हो। Anyways, conclusion में क्या लिखा है? To conclude, both these media are not equivalent and interchangeable with each other as they have unique characteristics. तो दोनों मीडिया जो है ना तो बिल्कुल सेम है ना इंटरचेंजेबल है। जहाँ रेडियो की इंपॉर्टेंस है वहाँ रेडियो की इंपॉर्टेंस है, जहाँ टीवी की इंपॉर्टेंस है वहाँ टीवी की इंपॉर्टेंस है। The television, however, is superior to the radio because of its visual impact. But TV, because of its visual impact, so radio से superior हो गया। ठीक है, चलो हो गया ये, इससे भी समझ आ गया आपको? ये क्या है? एग्री डिसएग्री आ गया। ओके, अब हर तरह का ऐसे आ रहा है आपके सामने, डिफरेंट डिफरेंट, जो मैं आज करा रही हूँ। अभी हमने सबसे पहला करा डायरेक्ट क्वेश्चन, फिर हमने कर दिया डिस्कस एसे। नाउ वी हैव एन ओपिनियन एसे, and of the opinion essay we have as the most common type of opinion essay, that is do you agree or disagree. क्या आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? यहाँ पे मैं एक बात और कह दूं, कईयों के नीचे लिखा होता है ऐसे के नीचे to what extent do you agree or disagree, and ये जो लिखा हुआ है do you agree or disagree, इनमें कोई फर्क नहीं है, they are the same। ठीक है, the same। ओके, द इंटरनेट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड। ओके, अब ये इससे कह रहा है कि आजकल जो हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है इंटरनेट से, काफी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी मिलती है इंटरनेट से मिलती है। अब इसके साथ आपने एग्री डिसएग्री करना है कि सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से मिलती है? बताओ, डू यू हैव टू एग्री और डिसएग्री विद दिस कि हमारी ज्यादा इंफॉर्मेशन इंटरनेट से आ रही है? लेट मी नो। अनस, डू यू Yes, ma'am, I think so. नो? Most of the time तो नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेट से आ रही है इंफॉर्मेशन, इसके साथ एग्री डिसएग्री करना है, ये पूछ रही हूँ मैं। मैम ज्यादातर तो आ रही है, बट ऐसा नहीं कि सारी ही आ रही है। अरे ज्यादातर आ रही है, पर हमें इस स्टेटमेंट के साथ एग्री डिसएग्री करना है। मेरा क्वेश्चन ही नहीं सुन रहे हो।
आपको इसके साथ एग्री डिसएग्री करना है? नो मैम। इसके साथ नहीं एग्री डिसएग्री करना, ये फैक्ट है। ओके, इट्स ए फैक्ट गिवन। अब आगे स्टेटमेंट आ रही है जिसके साथ आपने एग्री या डिसएग्री करना है। Some people say that a large part of the information we get is incorrect. कुछ लोग कहते हैं कि जितनी इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेट से आ रही है उसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो ठीक नहीं होता, गलत है। क्या आप इससे सहमत हैं कि नहीं? किस आना सब समझ आया कौन से स्टेटमेंट से एग्री डिसएग्री करना है? मैम इनकरेक्ट वाली से। हाँ, ये पूछ रही थी मैं। ऊपर वाला तो फैक्ट दिया हुआ है और फैक्ट है, वो सच्चाई है कि ज्यादातर इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेट से मिल रही है। ठीक है, और सम पीपल से कि ज्यादा हिस्सा जो इंफॉर्मेशन का मिल रहा है इंटरनेट से वो इनकरेक्ट है। डू यू एग्री और डिसएग्री? अब मैंने इसको लिखा था, इंटरनेट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द वे पीपल गेट इंफॉर्मेशन। इंटरनेट ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है वो तरीका जिससे लोगों को इंफॉर्मेशन मिल रही है। इट इज बिलीव्ड बाय सम दैट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज इज रॉन्ग। ओके, अब इन्होंने लिखा है ये बिलीव, कुछ लोग ये बिलीव करते हैं, मानते हैं कि ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो ऑनलाइन सोर्सेज से मिलती है वो गलत है। Although some information may be questionable, I believe that most information is correct. मैंने लिखा है, मैंने कंसेशन दिया है और मैंने इसके साथ डिसएग्री करा है। ओके, डिसएग्री विद ए कंसेशन करा है। मैंने कहा है कि थोड़ी इंफॉर्मेशन हो सकती है क्वेश्चनेबल। क्वेश्चनेबल मीन्स जिसके आगे क्वेश्चन मार्क है, ये सही है ये गलत है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑल्दो सम इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेबल है, मेरा मानना है कि मोस्ट इंफॉर्मेशन करेक्ट है। ज्यादातर इंफॉर्मेशन मेरा मानना है कि करेक्ट है। समझ आ गया अब आपको इससे? यस मैम। इंट्रोडक्शन, कंसेशन वाली पॉइंट समझ आ गया? यस मैम। अब मैं इस इंट्रोडक्शन में लिख सकती थी आई स्ट्रांगली एग्री, और मैं अपने ऐसे में प्रूव कर देती कि ज्यादा इंफॉर्मेशन गलत है और मैं एग्जांपल्स दे देती, मेरा ऐसे करेक्ट था, 7 बैंड प्लस जा सकता था। मैं स्ट्रांगली डिसएग्री कर सकती हूँ और मैं प्रूव कर देती कि सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से मिल रही है, ज्यादातर इंफॉर्मेशन सही है, तो मैं स्ट्रांगली डिसएग्री कर गई। अब मैंने ऑल्दो कुछ इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, ज्यादातर इंफॉर्मेशन सही है, तो मैंने डिसएग्री करा है, बट मैंने कंसेशन दे दिया। ठीक है, कि हाँ थोड़ी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो गलत हो सकती है, जो क्वेश्चनेबल है। ठीक है, एडमिटेडली, फिर मैंने एडमिटेडली करके मैंने वो जो गलत इंफॉर्मेशन है उसकी बात कर दी है। सम फॉल्स, मिसलीडिंग और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन डज एग्जिस्ट, but the person surfing the net has to learn how to look for the authentic websites. This takes a little time, but ultimately people come to know about the websites imparting useful and correct information, and then bookmark those sites and avoid going back to the fake sites. अब क्या है कि some false, misleading और incorrect information हो सकती है, but then मैंने ये लिख दिया कि जो person सर्फ कर रहा है उसको धीरे धीरे समझ आ जाती है कि ये साइट अच्छी नहीं है, इस पे सारी गलत इंफॉर्मेशन पड़ी है, ये साइट अच्छी है। अब एक व्हाट्सएप में, आज जो भी इंटरनेट का ही पार्ट हो गया ना, व्हाट्सएप में खबर आ जाती है कोई। अब आज से 1-2 साल पहले लोग फटाफट मान लेते थे कि व्हाट्सएप में आ गया, किसी ने सही डाली होगी, पर अब लोग क्वेश्चन करते हैं ना, पहले सर्च करते हैं ना, ये न्यूज आई है, देख तो लें सही है कि नहीं, बिकॉज काफी लोग आजकल फेक न्यूज भी बना के डालते हैं ऐसे ही। आपको पता है ना ये बात? ऐसे लगता है सच में कोई न्यूज है, कहीं न्यूज रीडर पढ़ रहा है और पूरी न्यूज गलत होती है। Have you come across such things on the internet? Yes ma'am. सोशल मीडिया, Yes ma'am. सोशल मीडिया में ऐसा बहुत हो रहा है। तो अब लोगों को थोड़ी समझ आ रही है कि not everything is correct and they will obviously काउंटर चेक करेंगे ना कहीं और से, Of course ma'am. एंड फिर इमीडिएटली ब्लाइंडली नहीं फॉलो करेंगे। तो जो कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेबल होती है, बट फिर द पर्सन सर्फिंग द नेट हैज टू बी वाइज एंड सी कौन सी इंफॉर्मेशन को मानना है और कौन सी को बिल्कुल इग्नोर करना है। ठीक है, फिर मैंने फर्स्ट अपनी देनी है, क्योंकि मैंने डिसएग्री करा है कि ज्यादातर इंफॉर्मेशन करेक्ट है, उसके मेरे आर्गुमेंट्स देने हैं। My first argument is that only if the information is correct, it can enjoy a lasting attraction to readers. इधर ना मैं एक डाल सकती हूँ, however, however immediately जट नहीं रहा, वो मैंने ऊपर ही कर दिया however करके। ओके,
बट करके कर दिया ना, तो यहाँ पे there are many reasons why I believe that majority of the information is correct, that most of the information. My first argument is that only if the information is correct, it can enjoy a lasting attraction to readers. अगर information correct होएगी ना, तो वो lasting attraction to readers, only if it is correct, it can enjoy that. ठीक है? What with an expectation to have more readers, the author will be encouraged to post correct and authenticated articles, which will in turn attract more and more visitors to the website. Otherwise, when the audience comes to know they are being cheated, then they will stop visiting the blog or website. तो obviously जब लोगों को पता चलने लग जाएगा कि उनको तो ये तो साइट ही ऐसे खराब है, दोबारा वहां पे जाएंगे, फिर दोबारा कभी नहीं जाएंगे. ठीक है? Okay. Secondly, as such a wide sea of information surrounds the people, they will definitely not believe in one report, but may search out all the related information to compare and form their own opinion. तो आजकल क्या होता है कि जब आप कुछ सर्च करते हो नेट पे, तो क्या होता है, आप जो है इंफॉर्मेशन को कंपेयर करते हो ना, आप और साइट्स पे चेक करते हो ना, अच्छा हमने यहाँ पढ़ा है और भी एक दो साइट्स पे देख लें कि यही बात है कि कुछ और है. ओके, फिर अपना ओपिनियन बनाते हो कि सीधा एक साइड से पढ़ के ओपिनियन बना लेते हो. तो मैंने सेकंड ये दिया है कि आजकल लोगों के पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है. आप कोई सर्च मारो, हजारों साइट्स खुल जाती हैं उस चीज के बारे में. सही कि नहीं? बोलो. Yes, ma'am. तो आप एक ही साइट से बस सर्च मार के फिर अपना ओपिनियन बनाते हो कि दो चार तो देखते ही हो कम से कम. Yes, ma'am. 2-4 तो देखते हैं. ज्यादा देखते हैं मैम. हाँ, ज्यादा देखते हैं. To add to it, the issue of cybercrime has also led to the websites being supervised because which discourages because of Niana. Which discourages people to post wrong and misleading. आजकल क्या हुआ है कि साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है. आपको पता है ना साइबर क्राइम क्या होता है? तो साइबर क्राइम सेल्स बन गए हैं डिपार्टमेंट में भी, और साइबर क्राइम की वजह से भी वेबसाइट सुपरवाइज हो रही हैं, तो लोग ना गलत न्यूज नहीं डालते हैं. ठीक है? और फिर मैंने ये वर्ड डाला प्लेजियरिज्म. प्लेजियरिज्म इज ऑल्सो कंसिडर्ड एन ऑफेंस, एंड सो दोज पोस्टिंग एनी इंफॉर्मेशन नो that they are being monitored. अब प्लेजियरिज्म भी ऑफेंस है. सो प्लेजियरिज्म का क्या मतलब है? किसी और से कोई इंफॉर्मेशन ली और अपनी कह के पोस्ट कर दी, इसको कहते हैं प्लेजियरिज्म. आपको कोई ऐसे मिले, मैं आपको ऐसे दूं लिखने के लिए, आप नेट पे ढूंढो, आपको सेम ऐसे मिल गया, फटाफट कॉपी करके मुझे दे दो, मैंने लिखा है, तो व्हाट वुड दैट बी एन एग्जांपल ऑफ? प्लेजियरिज्म. तो प्लेजियरिज्म भी एक ऑफेंस होता है. ठीक है? तो इसको भी, इसकी वजह से भी लोगों को पता है कि ये ऑफेंस है, हम प्लेजियरिज्म करेंगे पकड़े जाएंगे, हमारे पे नजर है साइबर क्राइम सेल की. To sum up, most of the information on the internet is worth our trust. With the rise of people's awareness of its accuracy, more correct information will be there awaiting us in the future. आप पता है क्या है, अब हमारी जो मेरी जो स्पीकिंग की फाइल आती है, कई जने डाल देते हैं, जो कुछ को तो हम फिर मैसेज डालते हैं कि अगर हमने एक आपकी रिपोर्ट करी ना यूट्यूब को, तो यूट्यूब बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, और लिया भी है उन्होंने कईयों के अगेंस्ट. 1 सेकंड में पुट डाउन करते हैं इंफॉर्मेशन. ओके, तो दैट्स अ वेरी, दे नो दैट इट इज गोइंग टू रियली बी वेरी बैड फॉर देम. उनकी साइट बिल्कुल कट हो जाएगी, दे विल बी बार्ड, एंड उनकी जितनी एड्स की जो रेवेन्यू आ रहा है बिल्कुल खत्म हो जाएगा. ओके, सो ये है कि this is all about this essay. I hope this essay is clear now, and if you get it, you will be able to write. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we have discussed direct question, we have discussed discuss essay, we have discussed one opinion essay. ठीक है? और हमने और कौन से करा है?
3 ही करे हैं? यस मैम 3 ही करेंगे। हाँ 3 कर लें। 3 अच्छे से कर लिए ना, आपको 3 ऐसे अच्छे से कर लिए। ओके, recent advancements, ये भी agree disagree है। Recent advancements in technology have made the TV screen so live that people do not feel the need to go for any live performance. To what extent do you agree or disagree? मैंने agree करके बनाया है, आप while करके भी डाल सकते हो। हाँ while करके डाल सकते हो। हाँ मैंने while वाला सेंटेंस ही बनाया, मैंने कंसेशन का ही बनाया। कंसेशन का सेंटेंस है कि जहां वहां जाके लाइव परफॉर्मेंस देखने का एक अपना ही चार्म है। मैं एग्री करती हूँ कि आज के युग में ज्यादा जाने का कोई इंसेंटिव नहीं है ज्यादा, मतलब मैंने एग्री करा है कि ज्यादा जरूरत नहीं है जाने की, क्योंकि टीवी वैसे ही बड़ा लाइव हो गया। अब देखो, आप देखते हो रियलिटी शो में कोई सिंगर है तो वो क्या करते हैं टीवी वाले, सिंगर की फैमिली को वहीं पे स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करा देते कि चलो हाई कर दो अपने बच्चे को या अपने गांव के बच्चे को, या सब आना पड़ता है लोगों को वहां पे। दादा दादी नाना नानी पापा मम्मी सब आते हैं वहां पे शो में, कभी कभी आते हैं पर कहीं नहीं भी आते। वो तो वैसे ही मतलब लिटिल इंसेंटिव है ना कि चलो घर से ही हमारी बात हो जाएगी, हम देख लेंगे उसको, यस मैम। वो भी हमें देख लेगा, तो लिटिल इंसेंटिव है। अब फिर अगर आपने जाना है एक्चुअली कोई टीवी जो कोई लाइव परफॉर्मेंस देखने, तो आप एक तो आप टिकट खरीदोगे, एक आप जाने आने का खर्चा करोगे, एक आप क्यू में लगोगे वहां जाके, एक आपको पता नहीं कहाँ सीट मिलेगी, आपको स्टेज कितनी नजर आ रही है, ठीक है। और यहाँ टीवी पे तो कितना अच्छा डिस्प्ले आप देख सकते हो सारा कुछ, तो लिटिल इंसेंटिव है, मैंने एग्री करा है। पर मैंने ये भी बता दिया कि हाँ जाने का कुछ अपना ही चार्म है, वहां एक्चुअल होने का अपना ही चार्म है, बट इंसेंटिव ज्यादा नहीं है एक्चुअली जाने का, घर बैठे भी उतना ही एंजॉय कर सकते हो। और वैसे लोग क्या देखते हैं वहां जाके, बहुत पुरानी बात है 2004 की, मैं बताती हूँ। मेरे हस्बैंड गए पाकिस्तान अपने फ्रेंड्स के साथ और क्रिकेट मैच देखा वहां पे, और वैसे घूमे भी, क्रिकेट मैच देखे, वापस आए, मेरे बच्चे का एग्जाम था तो मैं तो गई नहीं, मैं वापस आया तो मुझे ये आपस में फ्रेंड्स ये क्या डिस्कस कर रहे हैं, यार पाकिस्तान की लड़कियां कितनी वो एडवांस्ड है, बुर्के पहने वो, यार स्मोक कर रही थी, सिगरेट हर एक के हाथ में थी। अब ये क्रिकेट मैच कितना देखा है और क्या देख के आए हैं, लाइव जाने के और भी ठीक है। तो वैसे मैं बता रही हूँ कि जब जाते हो तो आप और भी चीजें बहुत कुछ करते हो, मतलब दैट इज एक्साइटिंग इन इट्स ओन वे, राइट। जब आप हूट करते हो अपने फेवरेट उसके लिए चीयर करते हो, वो चीज आप टीवी पे नहीं कर सकते हो अकेले बैठे देखते हुए, ठीक है। बट वो हमेशा तो नहीं ना आप कहीं जाओगे, ठीक है। तो दैट इज इट। ओके, विल यू रीड इट ऑन योर ओन, और इसको कर लेना या क्विकली कर लेते हैं, वी हैव टाइम फॉर 1 or 2 essays. Although the live plays and musicals have magic, चलो ये पढ़ ही देती हूँ मैं आपको। How will you write this essay when it comes to? Although the live plays and musicals have magic and a strange mesmerizing energy between the audience and performance, I agree with the given statement that in the current age of live TV screening, there is little incentive to go out and see such events. Okay. ये ना चेंज कर दूँ। It is believed by some. It is believed by some that in the current age of live TV screening, there is little incentive to go out and see such events. Although the live plays and musicals have magic and a strange mesmerizing energy between the audience and performance, I agree with the given statement. ठीक है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन अब लेटेस्ट मेथड के हिसाब से हो गई। कुछ लोग ये मानते हैं, फिर मैंने कंसेशन वाला स्टेटमेंट दे दिया कि चाहे उनमें कुछ है, उनका एक मैजिक है जाने का, मेस्मराइजिंग एनर्जी है ऑडियंस एंड परफॉर्मेंस के बीच में, आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। गिवन स्टेटमेंट ऊपर है, ठीक है। अनडाउटेडली करके मैंने पहला बना दिया है, उसका फायदा दे दिया लाइव परफॉर्मेंस। अनडाउटेडली द एक्सपीरियंस ऑफ लाइव परफॉर्मेंस बिल्ड्स कम्युनिटी। फॉर इंस्टेंस, सिटिंग इन अ थिएटर विद हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु हैव द सेम इंटरेस्ट्स is an unparalleled experience. Secondly, attending a live performance also provides the excitement of the actor-audience connection in real time.
This will keep the theater from fading away completely, no matter how much technology takes over our lives. तो जो दो फायदे हैं कि जो एक एक्साइटमेंट एक्टर ऑडियंस का कनेक्शन है एंड फिर कम्युनिटी का सेंस है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो सेम इंटरेस्ट वाले हैं वहां गए हैं, उनके साथ मिलके अपना फेवरेट शो देखने का अपना ही मजा है, ठीक है। और फिर दूसरा ऑडियंस के बीच में और एक्टर के बीच में जो एक रिलेशन है, इन दो पॉइंट्स की वजह से जो थिएटर है, जो लाइव शोज हैं, वो फेड अवे नहीं होंगे जितना मर्जी टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में आ जाए। गॉट इट? ये 2 पॉइंट्स हैं, एडमिटेडली करके डाल दिए, ये कंसेशन दिया है, ठीक है। हाउएवर the main factors in favor of TV are the high cost and the limited accessibility of actual live shows. अब cost high है और limited accessibility, इसका क्या मतलब है limited accessibility of live shows? आप कपिल शर्मा का शो देखते हो टीवी पे? अब कितने लोग हैं जो एक्चुअली वहां जाके देख सकते हैं, वहां बैठ के? 100 क्या? एक्सेसिबिलिटी नहीं है ना, लोग चाहे भी तो नहीं पहुंचेंगे ना वहां पे। बड़ी सिक्योरिटी है, उनको हर ऑडियंस को देखना है कि ठीक है कि नहीं है, चेक है, फीस पे, मतलब अंदर जाने की टिकट है। मेरी सिस्टर अपनी फैमिली के साथ गई हुई है एक बार, बाय द वे, she has been there, she came from abroad and she got some connections है उसके, तो they got to be there in that show, ठीक है। तो ये है सीटिंग कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है, एक्सेसिबिलिटी में ये पॉइंट आ गया, और फिर कॉस्ट भी बहुत हाई है। आप देखो बॉम्बे जाओगे या जहां पे भी शूटिंग हो रही है, वहां जाओगे, जाने आने का खर्चा भी करोगे, फिर वो देखोगे, पूरा दिन खराब करोगे। घर में बैठे 1 घंटे का शो 1 घंटे में देख लोगे, वहां 1 घंटे के शो के पता नहीं कितने एडिट्स और कट्स होते होंगे, कितने घंटे चलता होगा। समझ आ रही है आपको ये बात? ठीक है। On top of that, the tickets are very costly, especially if a person wants seats near the stage. Another thing which goes in favor of TV is the lack of time in today's fast-paced world. People also have to stand in queues and drive distances to watch these shows. 1 2 to 3 hour live show actually takes away whole day at times. तो ये सारा पैरा आपको समझ आ गया? कोई डिफिकल्ट वर्ड है इसमें? No, ma'am. No, ma'am. Furthermore, people do not need to dress formally, as live TV can be watched in the comfort of their sofa or bed and while doing some other household chores. अब आप live TV देख रहे हो, घर का कोई काम है, अब मैं बैठी हूँ लाइव टीवी देख रही हूँ, मैं निटिंग कर लूंगी साथ साथ अपना, मैंने कोई ना कोई लगाया ही होता है, स्वेटर या कुछ, क्योंकि मेरे को एक काम मल्टीटास्किंग करने की आदत है। मुझे लगता है कि दैट इज शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। अब टीवी वाले में इतनी कॉन्सेंट्रेशन नहीं भी जाए, चली भी जाती है, ऐसी कोई बात नहीं, तो उसके साथ साथ तो कुछ और हो ही सकता है, वो मैं जरूर कुछ ना कुछ अपना रखा होता है करने वाला। The focus of the cameras is also on the main characters, और फिर आपको कैमरे का फोकस भी मेन कैरेक्टर पे, आप बैठे हो देख रहे हो, मेन कैरेक्टर्स तो आपसे बहुत दूर है, आप दूर से ही एंजॉय कर रहे हो ना। टीवी पे तो आप क्लोजअप से एंजॉय कर रहे हो, because of which there is a better view of the actual show. Despite the fact that people want to experience live shows, such shows have become once or twice in a lifetime events, and that too for those who have the time and the money to do so. चाहे लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ये शोज, पर ऐसे शोज वंस और ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम वाले इवेंट्स रह गए हैं आम लोगों के लिए। मतलब पूरी जिंदगी में 1 या 2 बार देख लोगे ऐसा शो, और वो भी तभी जब आपके पास पैसा होगा या समय होगा ऐसे करने के लिए। तो इज दैट ओके? इज दैट फाइन? समझ आ गया? Yes, ma'am. Okay. To conclude, I reiterate my view by saying that while actually going and attending a concert or drama is in itself a unique experience, the live TV screen of today has an edge over it all, because it has made arts accessible to all regardless of geographical, social or economic boundaries. इतना लंबा नहीं भी लिखो चलेगा. While actually going and attending is in itself a unique experience, the live TV screen of today has an edge over it all. यहाँ पे फुल स्टॉप डाल दो और बिकॉज वाला सारा काट दो, वो वैसे भी मुश्किल सही है। ओके, चलो, ऐसे डन? ओके, यस मैम। जो मैंने डिफिकल्ट कराओ था ना ऐसे में मैंने और इजी कर दिया, सो दैट स्टूडेंट्स ना कई बार बेचारे वो हो जाते हैं कि बड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज आ गई, वहां लिख नहीं पाते ना। अब ऐसी लैंग्वेज है जो वहां नहीं रिप्रोड्यूस कर पाओगे? कोई ऐसी लैंग्वेज है इस ऐसे में जिसको आपको लगता है रट्टा मारना पड़ेगा? No, ma'am. नो, ऐसा होना चाहिए ना हर ऐसे बुक का। Yes, ma'am. मैं धीरे धीरे चेंज कर रही हूँ। ओके,
अब आ गया हमारे पास, डू यू थिंक एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेज? दिस इज द लास्ट essay which I'm going to discuss today. Exposure to international media such as films, TV and magazines has a significant impact on local cultures. तो जो इंटरनेशनल मीडिया जैसे मूवीज है, टीवी है, मैगजीन्स है, इसका लोकल कल्चर्स में बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है. आप क्या सोचते हो ये इम्पैक्ट क्या है और क्या इसके फायदे नुकसानों से ज्यादा हैं? Do you think its advantages outweigh the disadvantages? ठीक है. Okay. The emergence of international media has really changed the face of the globe. ये भी मैंने पता नहीं क्यों ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है. पहले पता है धीरे धीरे टीचर भी ग्रो करता है. Do you agree with this? It is, you know, always there. The teacher also grows. I have grown a lot with the students. धीरे धीरे समझ आ गया कि मुश्किल नहीं, सेम बिल्कुल सिमिलर लाइंस दो तो सो दैट चिल्ड्रन कैन रिप्रोड्यूस इट इन द एग्जाम, एक्चुअल एग्जाम. दैट विल फेच बेटर. अभी एक लड़की ने ना हार्डली 10 दिन के लिए ज्वाइन करा था एंड उसके राइटिंग में ना शी नीडेड जस्ट 6 नहीं आ रहे थे, 5.5 थे. मैंने पहले दिन चेक करा, मैंने कहा तूने बहुत जल्दी पेपर भर दिया है, तो मैम मेरे पास बस 10 दिन है, आप जितनी मेरे को जो करा सकते हो करा दो, बस मैं पेपर दे दे रहा. आज उसका रिजल्ट मैंने डाला है नेट पे, अपने ग्रुप्स में डाला है, उसके 6 आ गए राइटिंग में. शी इज सो हैप्पी. Thank you. और that was, you know, that's just in 10 days of preparation 5.5 से 6 पे, because difficult लिखने का सब बताते हैं, ऐसे लिखो वैसे लिखो. मैंने उसको बार बार यही बोला है कि बेटा सिंपलिसिटी, सिंपल लिखा ना. 6 तो ऐसे पढ़े हैं ना प्लेट में, 6 तो हर एक के पढ़े, बस सिंपल लिखो, सिंपल लाइंस. And today she thanked me and shared her result also. Ma'am, what was the essay? उनका ऐसे भी नया था. उनका ऐसे था डॉक्टर के पास नहीं लोग जाते, इंटरनेट से करते हैं ट्रीटमेंट, अपनी किसी बीमारी का इंटरनेट पे ढूंढते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डॉक्टर. डू यू थिंक इट इज अ पॉजिटिव और ए नेगेटिव डेवलपमेंट? ये ऐसे था, बुक में नहीं है, अभी मुझे लिखना है ये ऐसे. ओके, आप लोग भी इसके पॉइंट्स कर लेना, ये ऐसे अभी आया है वहां पे. ठीक है, तो ये बुक में है ही नहीं ऐसे, पर ये ऐसे इजी है, सोचा जा सकता है ना आजकल. मैम टेक्नोलॉजी के ऊपर ही है ना. हाँ, बेसिकली तो वही है ना. अब देखो मैं आपको बताती हूँ, जो मेरा एक नेफ्यू बाहर पढ़ने गया, मेरे फ्रेंड्स का बेटा ऐसे बाहर पढ़ने गया, वहाँ उनको उसको पता था कि आंटी डॉक्टर है, तो मुझे फोन कर लेता था कोई प्रॉब्लम होती थी. एक दिन फोन आया कि मेरे ना बड़ी पेट में दर्द हो रही है. मैंने कहा अच्छा तू ऐसे कर, तू ना थोड़ी एंटासिड देख, तेरे पास कोई पड़ी है यहाँ पैंटॉप की, उसको हमने किट बना के दी हुई थी. मैंने कहा ये टैबलेट खा ले ठीक हो जाए. नहीं, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है, मुझे ना इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, अब बताओ क्या करूं. तो मैंने उसको बोला इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो जा फटाफट इमरजेंसी में दाखिल हो और सर्जरी करा ले अपनी. तो बिकॉज इसकी तो सिर्फ सर्जरी है और कुछ नहीं, तो जा. फिर उसको अकल आई कि इनको शायद थोड़ा मेरे से ज्यादा पता है, इंटरनेट से भी ज्यादा पता है, तो मैं वही कर लूं जो बोल रहे हैं, वही आसान है. इमरजेंसी में जाना बहुत मुश्किल है. सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग. इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आजकल. तो मेडिसिन भी डिलीवर होने लगी घर. नेट्स. हाँ, नेट्स और भी बड़ी और बड़े बड़े ये जो एंडोर्स करते हैं इसको एक्टर्स एक्ट्रेसेस, है ना. अब पता है बात क्या है, तो इसका मतलब आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हो. सेल्फ मेडिकेशन के अगेंस्ट लिख देना, पर as far as the consultation with the doctor and getting medicines is concerned, इंटरनेट आजकल एक बून है, स्पेशली इन द कोविड टाइम्स. इट हैज प्रूव्ड अ बून. आप मेडिसिन घर में बैठे मंगा सकते हो. चलो आप तो फिर भी निकल जाओगे, कई घरों में सिर्फ बुजुर्ग लोग हैं, वो उनके लिए तो एक बून हो गया ना कि घर में दवाई भी डिलीवर हो जाएगी और ऑनलाइन वो डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस करके अपनी प्रॉब्लम बता के प्रिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं पे करके. ठीक है, there are such sites also which provide actual doctors to check you and tell you कि आपको हॉस्पिटल एक्चुअली आने की जरूरत है कि नहीं है, कि आपको ये दवाई से आराम आ जाएगा, आपके सारे सिम्टम्स पूछ के. वो पॉजिटिव लिख देना और नेगेटिव डेवलपमेंट लिख देना कि अगर सेल्फ मेडिकेशन कर ली जाए जस्ट बाय चेकिंग ऑन द इंटरनेट, रीडिंग समथिंग ऑन द इंटरनेट, दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग. that will have disadvantages. ठीक है, इस केस में फिर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आप देखो, while there are a few negatives of this, overall it is positive, क्योंकि overall positive है. फिर आप overall positive में पॉजिटिव फीचर्स दो. एक तो ये दे देना कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से आजकल इंटरनेट के थ्रू ले सकते हो,
और फिर जो मेडिसिन है वो आपके घर डिलीवर हो जाती है। प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन पोस्ट करनी पड़ेगी ना आपको प्रिस्क्रिप्शन उस साइट में देनी पड़ेगी, तभी वो आपको वो मेडिसिन भेजेंगे। कई दवाइयां हैं जो प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे ही मिलती हैं, तो वो भी चेक करेंगे, डॉक्टर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी चेक करते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई भी दवाई मंगा ले उसके घर डिलीवर हो जाएगी। जो ऑथेंटिक साइट्स हैं वो डेफिनेटली ऐसे नहीं करती होंगी कि कुछ भी लिख दो और आ जाएगी आपके घर, एक्सेप्ट फॉर ओटीसी मेडिसिन। ओटीसी मेडिसिन पता है ना कौन सी होती है? ऑन द काउंटर सेल, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर दोज। जैसे टाइलेनॉल है, जैसे पैरासिटामोल है ना, वो टाइलेनॉल वो मिल जाती है, ओटीसी है। ऐसे कई ओटीसी प्रोडक्ट्स हैं वो मिल जाएंगे, पर कई प्रोडक्ट्स हैं ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर हैं, वो नहीं दे सकते ऐसी, ये साइट्स भी नहीं भेज सकती, ठीक है। तो आप ये ऐसे आप लिख लोगे, थिंक ओवर इट अगर आ गया, रिपीट हो गया, ओके, ये भी एक ऐसे हो गया आपका थोड़ा सा डिस्कस आज, ठीक है, ओके। तो ये हो गया the emergence of international media has changed the face of the globe. It is true that exposure to international media has had a considerable impact on local cultures. In the following paragraphs, I shall discuss these impacts. While there are a few negatives, overall the impact has been largely positive. इसको ऐसे करते हैं, इसको change करते हैं. International media has had a considerable impact on the local cultures, while there are a few negatives, overall the impact of global media has been largely positive, ठीक है। ये अब बिल्कुल वो उस फॉर्मेट पे सेंटेंस है जो हम लेस देन 15 सेंटेंसेस वाले आपको जो एसेस दिए हैं सैंपल्स, उनके उसके बेस पे बिल्कुल, ठीक है। इजी इंट्रोडक्शन नाउ। इंटरनेशनल की जरा फॉरेन मीडिया कर दे, तो थोड़ा वर्ड भी चेंज हो जाएगा ना। ओके। On the one hand, internationalization of media can overpower national culture. People all over the world watch the dressing styles and eating habits of Western countries and copy the same. All foreign brand outlets and food outlets are seen all over the world. This leads to dilution of the local cultures and loss of diversity. ये दो negatives हैं। एक तो local cultures dilute हो रही हैं मतलब उनका वो कम हो रही है। आप मतलब अब डाइल्यूशन क्या होता है, आपने 1 चम्मच नमक डाला एक गिलास में और 1 गिलास पानी और डाल दो, तो नमक का इम्पैक्ट कम नहीं हो जाएगा, डाइल्यूट नहीं हो जाएगा पानी, ठीक है। ऐसे ही डाइल्यूट हो रहा है। आपकी स्ट्रॉन्ग कल्चर है, आपके जितनी आपकी कंट्री की कल्चर है उसके अंदर आप समझ लो 1 गिलास है पानी का, उसके अंदर आपकी जो अपनी कल्चर का इम्पैक्ट है वो 2 चम्मच नमक के बराबर है, और ऊपर से फॉरेन कल्चर आ गया, मतलब वो 1 गिलास पानी और डाल दो, और वो जो आपकी लोकल कल्चर है उसका इफेक्ट डाइल्यूट नहीं हो गया, कम हो गया ना उसका इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये इसको डाइल्यूशन कहते हैं। और डाइवर्सिटी लूज हो रही है क्योंकि आपकी एक जो पूरी दुनिया में एक डाइवर्सिटी थी, अलग जगह जाओ लोग अलग तरह के कपड़े पहनते थे, अलग तरह का खाना खाते थे, अब वो सारा खत्म हो गया। सब एक तरह के कपड़े पहन रहे हैं, एक तरह का खाना खा रहे हैं, एक तरह की मूवीज देख रहे हैं, तो ये सारा मतलब डाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। ये दो नेगेटिव्स हैं। ऑन द अदर हैंड, today's communications and technology allow a more open spread of culture around the world. People in far corners of the globe are able to people in far corners of the globe are able to be aware of and share each other's culture. A mixing of culture has enabled people around the world to overcome national boundaries to embrace common causes. Thus, cultural globalization in itself promotes diversity and respect for other cultures. तो इससे क्या है कि सारी कल्चर्स के लोगों को पता चल गया, तो लोग ना एक नई तरह की एक ग्लोबल कल्चर इवॉल्व हो रही है जिसमें सारे कल्चर्स के गुड पॉइंट है। तो ये ना कल्चरल ग्लोबलाइजेशन हो गई है, इसमें डाइवर्सिटी भी प्रमोट हो रही है और दूसरे कल्चर्स की रिस्पेक्ट भी हो रही है। तो लोगों को पता चल रहा है कि इनकी कल्चर हमारे कल्चर से इस पॉइंट से डिफरेंट है और इनकी कल्चर में ये पॉइंट अच्छा है। आप यहाँ पे एक एग्जांपल डाल सकते हो।
कोई भी, मैं तो ये नमस्ते और नमस्कार का एग्जांपल जो इंडियन वे ऑफ ग्रीटिंग अदर्स है, ये अब पूरी दुनिया में एक्सेप्ट हो गया जब से ये कोविड हुआ है। शेक हैंड नहीं करना, हग नहीं करना, तो नमस्ते कर दो। ट्रम्प ने भी Yes, ma'am. नमस्ते करी थी मोदी को। Yes, ma'am. हाँ, तो ये आप एग्जांपल डाल सकते हो। ओके। Another positive effect that international media has had on India is that our media companies have improved dramatically under the stiff competition of global media, and as a result, they have found a place in the international market. अब देखो, हमारा मीडिया इंटरनेशनल मीडिया के इम्पैक्ट से इतना ज्यादा कंपटीशन में डेवलप हुआ है। ये एग्जांपल है इंडिया का। देखो, हॉलीवुड बॉलीवुड से भी ज्यादा मूवीज बना रहा है। For example, Bollywood studios release around 700 major films each year, 3 times the rate of the major Hollywood studios. Finally, if the local culture is strong, अगर local culture strong है, it can never be lost. ये मेरा मानना है। अगर local culture strong है, वो कभी lose नहीं हो सकती। For example, for instance, the international media companies have to tailor their output so as to fit the local cultural setting. अब जो international media companies हैं, वो अगर इंडिया में अपना कोई प्रोग्राम देती हैं, अगर कोई भी प्रोग्राम है जो इंडिया में टेलीकास्ट हो रहा है, तो उसको ना वो थोड़ा चेंज करते हैं कि हमारे इंडियन लोगों को वो पसंद आए। उनको टेलर करना पड़ता है इसके हिसाब से, ठीक है। तो लोकल कल्चर उनको टेलर करना मीन्स उसको ऑल्टर करना पड़ता है थोड़ा सा। यहाँ पे टेलर का मतलब ऑल्टर है, चेंज करना पड़ता है। टेलर क्या करता है? आपके कपड़े ऑल्टर करता है ना, खुले करता है, लूज करता है, टाइट करता है। टेलर करना पड़ता है उनको अपने प्रोग्राम को। Summing up, the internationalization of media need not necessarily undermine national culture. If the local culture is strong enough, it can withstand any foreign influence. ठीक है जी, आज के इससे आपको समझ आ गए? यस मैम। मैम, ये किस टाइप का ऐसे था, एक बार ये बताएंगे? बताती हूँ। ये था ओपिनियन ऐसे, बट दिस इज एन ओपिनियन ऐसे जिसमें ना आपको हर हालत में एडवांटेजेस भी देने हैं और डिसएडवांटेजेस भी देने हैं। क्योंकि ये था डू यू थिंक इट्स एडवांटेजेस आउटवे, आपको दोनों चीजें लिखनी है। पर सिर्फ आपको ये, आप अगर कहते हो एडवांटेज ज्यादा है तो एडवांटेज के 2 पैरे बनाना, अगर आप कहते हो डिसएडवांटेज ज्यादा है तो डिसएडवांटेज के 2 पैरे। ठीक है, ओके। दिस इज आल्सो एन एग्री एसे। ठीक है, चलो, गुड बाय, सी यू टुमारो। Thanks a lot. Ma'am, Bye thank bye, you. ma'am.